الحمد للہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب الجود والکرم والجمال وعلی آلہ واصحابہ الذین اولی الفضل والکمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک 1446 ہجری کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اس کو ہمارے عرف عام میں جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس جمعۃ الوداع کو باقاعدہ کوئی تہوار سمجھ لیتے ہیں، یہ کوئی تہوار نہیں ہے۔ بعض لوگ اس جمعۃ الوداع کی کوئی مخصوص احکامات یا مخصوص نمازیں سمجھتے ہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی ایک جذباتیت سے اس کا تعلق ہے کہ چلو رمضان جا رہا ہے تو رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہہ دیا جائے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج فرمایا، آخری حج، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج فرمایا آخری حج، اس کو حضور کے آخری حج ہونے کی وجہ سے حجۃ الوداع کہہ دیا جاتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہہ دیا جاتا ہے۔ عوام الناس میں جو عجیب و غریب قسم کی باتیں مشہور ہیں کہ اگر جمعۃ الوداع میں یہ کام کر لیا جائے تو یہ ہوگا، یا جمعۃ الوداع کے اندر 12 رکعت نفل پڑھ لیے جائیں تو سارے سال کی نمازوں کی قضا جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ جتنی باتیں عوام میں مشہور ہیں یہ بے اصل ہیں، خلاف حقیقت ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمازوں کی قضا نمازیں پڑھنے سے ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے کئی سالوں کی نمازیں قضا ہیں تو وہ یہ نیت کر سکتا ہے کہ اوقات مکروہہ کو چھوڑ کر نمازوں کی ادا کرنا شروع کر دے اور مطلقاً نیت کرنا شروع کر دے کہ پیچھے قضا شدہ نماز ظہر پڑھ رہا ہوں یا پیچھے قضا شدہ نماز عصر پڑھ رہا ہوں۔ اگر 5 سال کی نمازیں قضا ہیں تو 5 سال لگاتار روزانہ 5 نمازیں قضا کی نیت سے پڑھنا شروع کر دے تو امید ہے اس کی 5 سالوں کی نمازوں کی قضا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ نمازوں کی قضا مکمل کرنے کا کوئی جادوئی طریقہ موجود نہیں ہے۔ یہ مختصراً میں نے ایک بات عرض کر دی ہے۔ اب میں وہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی جمعۃ الوداع کے حوالے سے جو موضوع میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اب اسی موضوع کو میں شروع کر دیتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے روزوں کا مقصد بیان فرمایا۔ اگر تو وہ مقصد حاصل ہے، وہ مقصد پورا ہے، تب تو رمضان کامیاب ہے۔ اگر وہ مقصد حاصل نہیں، وہ مقصد پورا نہیں، رمضان ناکام ہو جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی اپنے مرض کے علاج کے لیے کسی ہسپتال میں جاتا ہے، کسی طبیب کے پاس جاتا ہے، تو وہ ہسپتال جاتا بھی ہے، دوائی لیتا بھی ہے، قطار میں بیٹھتا بھی ہے، فیس بھی ادا کرتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے، اپنے چیک اپ کے لیے انتظار بھی کرتا ہے۔ بعد میں جا کے اسے پتہ چلتا ہے کہ شفا تو کوئی نہیں ملی۔ جب وہ سوچتا ہے کہ شفا کیوں نہیں ملی تو سمجھ آتا ہے اوہو دوائی تو کھائی کوئی نہیں تھی،
میں تو آنے جانے میں لگا رہا، میں تو انتظار اور قطار میں لگا رہا، جو دوائی کھانی تھی مرض کو ختم کرنے کے لیے وہ دوائی تو میں نے کھائی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری ایک دوائی تشخیص فرمائی ہے، اور اس دوائی کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پہ روزوں کو فرض قرار دیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، بالکل ویسے جیسے تم سے پہلے والوں پر ہم نے روزے فرض قرار دیے تھے، لعلکم تتقون، اور یہ روزے فرض کیوں قرار دیے؟ توجہ رکھیے، دوائی بیان کر رہا ہوں قرآن کے مطابق۔ یہ روزے فرض کیوں قرار دیے میں نے تم پر؟ اللہ فرماتے ہیں روزے اسی لیے فرض کیے تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، یہ دوائی ہے۔ اب ایک بندہ رمضان گزار لیتا ہے، زندگی میں بدلاؤ نہیں آتا، حالات میں تبدیلی نہیں آتی، زندگی اللہ کے قریب نہیں جاتی، دل و دماغ نماز کے عادی نہیں بنتے، رمضان کے روزے بھی پورے رکھتا ہے، تراویح بھی پوری پڑھتا ہے، آداب کا احترام بھی کرتا ہے، بھوکا پیاسا بھی رہتا ہے، رمضان گزرنے کے بعد دوبارہ وہی زندگی، مسجد میں آنا ختم، قرآن کھولنا ختم، اللہ کی طرف دھیان کرنا ختم، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا تو علاج ہوا نہیں ہے۔ تو جب یہ غور کرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ علاج اسی وجہ سے نہیں ہوا کہ جو دوائی اللہ نے فرمائی تھی کہ رمضان اس لیے دیا ہے تاکہ گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، اس نے رمضان میں روزے تو رکھے، بھوکا پیاسا تو رہا، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام، روزہ بھی چلتا رہا، ساتھ ساتھ میں گناہ بھی چلتا رہا، تراویح بھی پڑھتا رہا، اور تراویح کے بعد جا کے موبائل بھی دیکھتا رہا۔ تو اب رمضان گزرے گا تو جو حال رمضان سے پہلے تھا وہی رمضان کے بعد ہوگا، کوئی بدلاؤ نہیں آنا، کوئی تبدیلی نہیں آنی۔ ہاں اگر یہ دوائی کو استعمال کرنے والا ہو، رمضان میں گناہوں کو چھوڑنے والا ہو، جیسے کھانے پینے کو دن بھر اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے، ویسے راتوں کی تنہائیوں میں گناہوں کو بھی اللہ کی محبت میں چھوڑنے والا ہو، تو اللہ اس کے رمضان کی بعد والی زندگی کو بھی رمضان جیسا بنا دیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ اور یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا مقصد دیا کہ مقصد یہ ہے گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، یہ اتنا عظیم و شان مقصد ہے، یہ ایسا باکمال مقصد ہے کہ تقوی، گناہوں سے بچنا، یہ وہ دولت ہے جس دولت کے اللہ رب العزت نقد و نقد دنیا کے اندر 10 انعام عطا فرماتے ہیں۔ کتنے انعام عطا فرماتے ہیں؟ 10۔ گناہوں سے بچنے کے دنیا میں نقد 10 انعام ہے حضرت، 10 انعام نقد دنیا میں، آخرت میں تو جو ہوگا سو ہوگا، دنیا میں 10 انعام اللہ دیتا ہے گناہ چھوڑنے کے، تقوی اختیار کرنے کے۔ تقوی جو رمضان کا مقصد ہے، تقوی جو روزوں کا مطلوب ہے، تقوی جو رمضان کا محصول ہے، تقوی جو اللہ رب العزت نے روزوں کے صدقے مسلمانوں کو اپنانے کی تاکید فرمائی ہے، اس تقوی کے اللہ کتنے انعام نقد عطا فرماتے ہیں؟ جی بولیے 10۔ تقوی ہے کیا؟ گناہوں کو چھوڑنا۔ تقوی کیا ہے؟ جی بولیے ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہو، اللہ کا حبیب ناراض ہو، اللہ کی محبت میں اس کام کو چھوڑ دینا تقوی ہے۔ ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جو اللہ کی نظر میں برا ہے، جو رسول اللہ کی نظر میں برا ہے، ہر اس کام کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ کیونکہ گناہ وہی ہوتا ہے جسے اللہ برا کہے۔ بولیے گناہ وہی ہوتا ہے جسے، بولے نا یہ بات، گناہ وہی ہوتا ہے جسے کون برا کہے؟ اللہ برا، جسے رسول اللہ برا کہے۔ میرے اور آپ کے معاشرے کا رجحان یہ بن چکا ہے کہ گناہ وہ ہے جسے معاشرہ برا کہے، جسے لوگ برا کہیں گے وہ گناہ ہے، جسے لوگ برا نہیں کہہ رہے وہ گناہ نہیں۔ آپ دیکھیں گے یہی وجہ ہے، آپ صبح لاہور میں نکلیں، نماز کے بعد اشراق کے وقت ہم دیکھتے ہیں ہماری مائیں بہنیں وہ واک کر رہی ہوتی ہیں، مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، مائیں بہنیں بھی ہوتی ہیں، مارننگ واک کر رہی ہیں، چہل قدمی کر رہی ہیں۔ اب ہاتھ میں تسبیح ہے، خاتون کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تسبیح ہے، اس کا مطلب ہے نیک ہے نا، فجر کی نماز بھی پڑھی ہوئی ہے، مطلب نیک ہے، لیکن پردہ نہیں کیا ہوا۔
بے پردہ گھوم رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ پردے کو لوگ ضروری نہیں سمجھتے, پردہ نہ کرنے کو معاشرہ برا نہیں سمجھتا, تو اس بھلی مانس نے بھی اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا, کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ گناہ وہ ہوگا جس کو لوگ برا کہیں گے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ گناہ وہ ہوتا ہے میرے بھائیوں جس کو اللہ اور اللہ کا رسول برا کہے. جس سے اللہ اور اللہ کا رسول بنا کرے وہ گناہ ہے, اور اس گناہ کو چھوڑ دینا, ہر حال میں چھوڑ دینا, چاہے آرزوؤں کا خون ہو یا حسرتیں پامال ہو, اس گناہ کو چھوڑ دینا یہ تقوی ہے. اور اگر کوئی شخص ایسے تمام گناہوں کو چھوڑتا ہے تو اللہ رب العزت اس آدمی کو 10 نقد انعام دنیا میں عطا فرماتے ہیں. اگر آپ ارادہ فرمائیں اس رمضان کی برکت سے کہ ہر اس گناہ کو حتی الامکان چھوڑیں گے جس گناہ کو اللہ رب العزت نے گناہ کہا, رسول اللہ نے گناہ کہا, حتی الامکان اس رمضان کے جمعۃ الوداع کے صدقے انشاءاللہ یہ ارادہ کرتے ہیں. آج جمعۃ الوداع میں یہ عزم مصمم کرتے ہیں کہ رمضان کے 27 روزے گزار چکے ہیں, جس طرح کھانا پینا اللہ کی محبت میں چھوڑا ہے ویسے تمام گناہوں کو بھی پورا سال اللہ کی محبت میں چھوڑ دیں گے. ارادہ کرتے ہیں. اگر آپ یہ ارادہ کریں تو میں آپ کو وہ 10 انعام بتاؤں جو اللہ گناہ چھوڑنے والے کو دنیا میں عطا فرماتا ہے. 10 انعام. اب سنتے جائیے گا, گنتے جائیے گا, اور یہ 10 انعاموں میں سے ہر انعام اللہ کے قرآن سے بیان کروں گا. ہر انعام, اپنی طرف سے کوئی نہیں. اللہ کے قرآن میں اللہ نے گناہ چھوڑنے کے 10 انعام بتائے ہیں میرے بھائیوں. کتنے انعام بتائے ہیں؟ پہلا انعام سنیے. جو آدمی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے, جیسے رمضان میں کھانا پینا چھوڑا, ویسے رمضان کے بعد بھی جو آدمی گناہوں کو چھوڑا, کوئی مشکل نہیں ہے. آنکھوں کا گناہ, زبان کا گناہ, کان کا گناہ, صحیح, دل کا گناہ, کینہ ہے, حسد ہے, عداوت ہے, بغض ہے, نفرت ہے, کسی کو دھوکہ دینے کی حسرت ہے, جو آدمی یہ گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت اس کو پہلا انعام عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں من یتق اللہ, سنیے گا, من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. اللہ فرماتے ہیں جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے میں اس کو ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتا ہوں, مخرج عطا فرما دیتا ہوں, نکلنے کی جگہ عطا فرما دیتا ہوں. اگر وہ اس طرح پھنس جائے گا, اسے لگے گا دروازے بند ہیں, دیواریں بند ہیں, اندھیرا چھا گیا, کہیں سے نکلنے کا راستہ نہیں, باہر جانے کا راستہ نہیں, میں پھنس چکا ہوں. لیکن اگر وہ شخص اللہ کی محبت میں گناہوں کو چھوڑتا ہے, اللہ عین پھنسے ہونے کی حالت میں اس کو نکلنے کا راستہ عطا فرما دے گا. پہلا انعام ہے گناہ کو چھوڑنے کا. دوسرا بتاؤں گا تبھی جب چھوڑنے کا ارادہ کریں گے. ارادہ کرتے ہیں سب انشاءاللہ, جو محبت سے آج یہ عزم کرتے ہیں انشاءاللہ کہ رمضان کے جمعۃ الوداع کے صدقے مولانا صاحب یہ ارادہ کرتے ہیں. ارادہ تو کریں نا, ارادہ وہ ہوتا ہے کہ جب کیا جائے تو توڑنے کا ارادہ نہ ہو, جب کیا جا رہا ہو تو توڑنے کا ارادہ. آپ اس جمعۃ الوداع کے صدقے عزم مصمم کر لیجئے کہ توڑیں گے نہیں. یہ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی گناہوں کو ویسے چھوڑیں گے جیسے رمضان میں کھانا پینا چھوڑا. ارادہ کرتے ہیں. تو پہلا انعام یجعل لہ مخرجا, اللہ بندشوں میں راستے نکال دے گا. یہ پہلا انعام ہے قرآن میں. دوسرا انعام سنیے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا. اللہ فرماتے ہیں جو بندہ گناہوں کو چھوڑتا ہے, جو بندہ گناہوں کو چھوڑتا ہے, اللہ فرماتے ہیں اس کو دوسرا انعام یہ دیتا ہوں کہ اس کے جتنے کام ہوتے ہیں میں اس کے تمام کاموں کو آسان کر دیتا ہوں. آج کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ ہمارا کہ کام مشکل ہو جاتا ہے, بظاہر معمولی سا کام ہے لیکن مشکل ہو گیا, ہو نہیں رہا, بالکل نہیں ہو رہا. گناہوں کو چھوڑ دیجیے.
اللہ کی नाफरमानी वाले काम इसी नीयत से छोड़ दीजिए, अल्लाह ये काम मुश्किल बना हुआ है और आपने ये वादा किया है जो गुनाहों को छोड़ेगा मैं उसके कामों को आसान कर दूंगा। अल्लाह मैं अपना काम आसान कराना चाहता हूँ, मैंने गुनाह छोड़ा हुआ है, मैं मिंबर पे हूँ, जिम्मेदारी से दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आप अल्लाह की मोहब्बत में गुनाह छोड़ेंगे अल्लाह आपके कामों को आसान फरमा देगा। 2 इनाम हो गए, तीसरा इनाम सुनिएगा। तीसरा इनाम, सबका मसला, बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा मसला। अल्लाह फरमाते हैं जो आदमी तकवा इख्तियार करता है, जो आदमी गुनाहों को छोड़ता है, यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह फरमाते हैं ऐसी जगह से रोजी अता फरमाऊंगा कि इसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा, रिज़्क़ अता फरमा दूंगा। सबसे बड़ा मसला रिज़्क़ है, और ऐसी जगह से दूंगा तुम्हारे गुमान में भी नहीं आएगा, तुम्हारे हाशिए ख्याल में भी नहीं आएगा कि कहां से आया है, कैसे आया है, अल्लाह देगा। कुरान का वादा है, दुनिया का सबसे सच्चा कलाम ये अल्लाह का कुरान है, और अल्लाह अपने कुरान में गुनाहों को छोड़ने पर वादे कर रहे हैं आपसे, अल्लाह वादे कर रहे हैं। यार आज का कोई बड़ा सियासतदान आपसे कोई हल्का सा वादा कर ले, आपको खुशी से रात को नींद, जी चौधरी साहब ने वादा किया है, एमएनए साहब ने वादा किया है, वजीर साहब ने वादा किया है। चौधरी एमएनए वजीर की क्या औकात है, सारी दुनिया का पालनहार, सारी दुनिया का राज़िक खालिक मालिक, सारी दुनिया का दाता मुश्किल कुशा हाजत रवा, खुद अल्लाह ये वादा कर रहा है तुम मेरी मोहब्बत में गुनाह छोड़ने वाला बन, तुझे ऐसी जगह से रिस्क दूंगा कि तेरे वहमो गुमान में भी नहीं होगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। 3 फायदे हो गए तकवा के, चौथा फायदा सुनिएगा। आज के इस पुरफितन दौर में हमें यह पता नहीं चलता कि हक क्या है, बातिल क्या है, सच क्या है, फरेब क्या है, हमें यह पता, खालिस क्या है और धोखा क्या है, हमें आज के इस पुरफितन दौर में यह पता लगता। अल्लाह रब्बुल इज्जत तकवा का चौथा इनाम बयान करते हुए फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना। अल्लाह फरमाते हैं ए ईमान वालो, अगर तुम मेरी मोहब्बत में गुनाहों को छोड़ने वाले बन जाओगे तो तुम्हें हक और बातिल में फर्क करने की ताकत अता फरमा दूंगा, तुम्हारे दिल में वो नूर पैदा फरमा दूंगा जो नूर तुम्हें बता देगा कि हक क्या है, बातिल क्या है, खालिस क्या है और धोखा क्या है, फरेब क्या है, हकीकत क्या है। अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हारे दिल में ऐसा नूर पैदा फरमा दूंगा कि तुम खुद ही पहचान लोगे। 5वां फायदा सुनिए, 5वां फायदा तकवा का 5वां फायदा जो रमजान का मकसद है। जुमातुल वदा में जरूरी है कि हम रमजान का मकसद सुन के जाएं। रमजान का मकसद तकवा का 5वां फायदा अल्लाह फरमाते हैं क्या, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। सारी दुनिया इज्जत की भूखी है, सारी दुनिया इज्जत की प्यासी है, हर शख्स अपनी इज्जत कमाने के चक्कर में है, दिन को निकलते हैं शाम कर देते हैं, सारी जिंदगी लगाते हैं किसके लिए, इज्जत कमाने के लिए। अल्लाह फरमाते हैं तो गुनाहों को छोड़ने वाला बन जा, अल्लाह तुझे गुनाहों के छोड़ने के सदके इज्जतें अता फरमा देगा। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह इज्जत देता ही उसको है, अल्लाह इज्जतों का ताज पहनाता ही उसको है जो तन्हाइयों में, खलवत में, जल्वत में अल्लाह की मोहब्बत के लिए गुनाहों को छोड़ देता है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। ये 5 फायदे हो गए। फायदा नंबर 6 सुनिए, फायदा नंबर 6। ये जो हम कहते हैं फलाना अल्लाह का वली है, याद रखिए वली को कोई सींग नहीं लगे होते, वली को कोई सींग, कुछ अल्लाह के ऐसे भी वली होते हैं कि उनके चेहरे से लगता नहीं कि ये वली है, लेकिन हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुब्ब अशअसिन अग़बरा लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रा। आपको कुछ लोग ऐसे नजर आएंगे, मलंग, बाल बिखरे हुए, परागंदा, लिबास पुराने, अगर कोई मजलिस में चले जाएं तो मजलिस में उनको दाखिल ना होने दिया जाए, लेकिन अल्लाह के इतने बड़े वली होते हैं कि अगर अल्लाह पर किसी बात की कसम खा लें तो अल्लाह तकदीर बदल के उनकी कसम को पूरा फरमा देता है। ऐसे वली होते हैं।
और ये कब बनते हैं? तकवा का इनाम नंबर 6, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। अल्लाह फरमाते हैं मैं विलायत देता ही उसको हूं जो गुनाहों को छोड़ देता है। लंबी लंबी नमाजें पढ़ना विलायत के लिए जरूरी नहीं, हाँ पढ़नी चाहिए, विलायत के लिए मुआविन है। लंबे लंबे सजदे करना विलायत के लिए जरूरी नहीं, करने चाहिए, मुआविन है। माथे पे मेहराब होना विलायत के लिए लाजमी नहीं, सर पे लंबी पगड़ी पहनना विलायत के लिए लाजमी नहीं, लेकिन गुनाहों को छोड़ देना विलायत के लिए लाजमी है। अगर पानी पे चलता है, हवाओं में उड़ता है, साथ साथ में नबी की सुन्नतें भी छोड़ता है, गुनाह भी करता है, याद रखो ये बहरूपिया हो सकता है, ये 2 नंबर दगाबाज हो सकता है, अल्लाह का वली तलाश करना है, उसके साथ रहना शुरू कर दो। देख लो अगर वो गुनाह नहीं करता, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता, सुन्नत के खिलाफ कोई काम नहीं करता, तो उससे बड़ा दुनिया में वली कोई नहीं। तो तकवा का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 नंबर का इनाम ये बयान फरमाया कि इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अगर गुनाहों को छोड़ोगे तो तुम्हें दर्जा विलायत अता फरमाऊंगा। तकवा का इनाम नंबर 7 सुनिए। हमारे काम बिगड़ जाते हैं, काम करते हैं, काम क्या होता है जी बोलिए? बिगड़ जाता है। काम शुरू किया, काम बिगड़ गया, काम नहीं बना। सबका ये मसला है। हमारे पास दोस्त आते हैं, कहते हैं हजरत जिस काम में हाथ लगाता हूं बिगड़ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम। अल्लाह फरमाते हैं ए ईमान वालो, तुम गुनाह छोड़ने के आदी बन जाओ, तुम गुनाह छोड़ने के आदी बन जाओ। युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे कामों को संवार के सजाना मुझ अल्लाह का काम है। संवार भी दूंगा, सजा भी दूंगा, कोई काम बिगड़ने नहीं दूंगा, कोई मसला खराब नहीं होने दूंगा, कोई काम उलझने नहीं दूंगा। युस्लिह लकुम आमालकुम। भाइयों ये कुरान है, मैं कोई किस्सा नहीं सुना रहा, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, मैं कोई अपना तजर्बा नहीं बता रहा, मैं कोई अपना मुशाहदा नहीं बता रहा, मैं अल्लाह का कुरान सुना रहा हूं जो समझने के लिए, समझ कर अमल करने के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया है। इस कुरान में अल्लाह फरमाता है अगर कामों को संवारना चाहते हो, बिगड़ी को बनाना चाहते हो, अपने कामों को दुरुस्त कराना चाहते हो, तो इसका वजीफा सिर्फ एक है कि अल्लाह के लिए गुनाहों को छोड़ दो, तकवा इख्तियार कर लो। इनाम नंबर 7, अगला इनाम सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जो गुनाह तुम कर चुके हो, जो गुनाह तुम कर चुके हो, गुनाह हर इंसान से होता है। हुजूर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, आदम का हर बच्चा बहुत ज्यादा खता करता है, गलती करता है। इसका तर्जुमा हम करते हैं कि आदम की औलाद खता का पुतला है, इंसान खता का, ये इसी हदीस का तर्जुमा है कि कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, आदम का हर बच्चा खता करने वाला है, बहुत ज्यादा गलतियां करता है। लेकिन हुजूर ने फरमाया खैरुल खत्ताईन, बेहतरीन गुनाह करने वाला वो है अत्तवाबून, जो गुनाह के बाद सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा कर लेते हो, वो बेहतरीन है। अब जो गुनाह कर चुके हो, अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे तो होगा क्या? यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह फरमाते हैं तकवा इख्तियार करोगे तो तुम्हारे सारे पिछले गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। अगला इनाम सुनिए तकवा का, इनाम नंबर 9, गुनाह माफ हो जाना। ये बहुत बड़ी बात है। गुनाह माफ हो जाना क्या है जी बोलिए? बहुत बड़ी बात है ना। गुनाह माफ हो जाना, आपको कोई सरकारी सतह पे आप लोन लें 5 लाख का और हुकूमत ऐलान कर दे कि लोन माफ, लोन माफ, कितनी खुशी होगी बोलिए? होगी। खैरातें करेंगे, दावतें खिलाएंगे, 5 लाख माफ हुआ है भाई, 10,000 की देख पका लूं तो क्या जाता है। और इधर अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हारे सारे पिछले गुनाह माफ। अहमियत इसलिए दिल में नहीं कि अभी गुनाहों के नुकसान का पता नहीं चला ना गुनाहों के नुकसान का पता है, न नेकी के फ़ायदे का पता है। मैं चलो आखिर में गुनाह के नुकसान और नेकी के फ़ायदे भी बता देता हूँ आपको। पहले ये इनाम नंबर 9 सुन लीजिए, तकवा का इनाम नंबर 9।
जाओगे तो भूल आप। 10 इनाम गिनवा रहा हूं कुरान से। इनाम नंबर 9, अगर गुनाह अल्लाह माफ कर देता, ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन सिर्फ इसी पे बस नहीं फरमाई अल्लाह ने। क्या फरमाया? वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम गुनाहों को छोड़ने वाले बन जाओगे ना, तो जो पिछले गुनाह तुमने किए थे सिर्फ उनको माफ नहीं करूंगा, माफ करके पिछले गुनाहों को भी नेकियों से तब्दील कर दूंगा। पिछले गुनाह भी नेकियों से बदल दूंगा। इतना बड़ा इनाम। इनाम नंबर 10, तकवा का इनाम नंबर 10 सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। ये तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम मेरी मोहब्बत में अच्छे काम करने के आदी बनोगे, गुनाहों को छोड़ने के आदी बनोगे, मर्द हो या औरत, कोई तफरीक नहीं है, बूढ़ा है या जवान, अमीर है या गरीब, काला है या गोरा, अच्छी कॉलोनी में रहता है या गंदे मोहल्ले में रहता है, झोंपड़ी में रहता है या बंगले में रहता है, जो मर्जी हो, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, नेक काम करने वाला बन जाए, गुनाहों को छोड़ने वाला बन जाए। अल्लाह फरमाता है जरूर जरूर मैं इसकी जिंदगी को सुख वाला बना दूंगा। और सुख का ताल्लुक बंगले में रहने से नहीं, दुख का ताल्लुक झोंपड़ी में रहने से। सुख अल्लाह की नेमत है, देने पे आए तो झोंपड़ी वाले को दे देता है, और छीनने पे आए तो बंगले वाले से भी छीन लेता है। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह फरमाता है जरूर जरूर मैं तुम्हें सुख वाली जिंदगी दूंगा। दूंगा कब? जब गुनाहों को छोड़ने वाले बन जाओगे। तो भाइयों, ये तकवा के 10 इनाम हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में बयान फरमाए हैं। ये ना किसी मौलवी ने कहे, ना किसी पीर ने कहे, ना किसी आदमी का तजर्बा है, बल्कि अल्लाह के बयान करदा 10 वादे हैं। और ये तकवा इसी रमजान के महीने में मिलता है। बोलिए तकवा इसी रमजान के। आज जुमातुल वदा है, 27 रोजे हो चुके हैं। जिन लोगों ने इन रोजों के जरिए जिन लोगों ने गुनाहों को छोड़ने की आदत बनाई है, उन्हें बहुत मुबारक हो। आपको पता है रोजे में अल्लाह ताला किन चीजों से मना फरमाता है? खाना नहीं, पीना नहीं, और जायज नफसानी तकाजे भी पूरे नहीं करते। ये 3 काम ऐसे हैं हजरत जो जायज हैं, जायज हैं। खाना जायज, पीना जायज, मियाँ बीवी का आपस में नफसानी तकाजों को पूरा करना जायज। और ये सिर्फ जायज नहीं, बाज़ औक़ात फर्ज हो जाते हैं। यानी इतना पानी पीना कि आप जिंदा रहें, ये आप पे फर्ज है। इतना खाना खाना कि आप जिंदा रहें, ये आप पे फर्ज है। नफसानी तकाजे जायज हद में पूरे करना ताकि आप जिना से बच जाएं, ये आप पे फर्ज है। ऐसे काम जो जायज है, बाज़ औक़ात फर्ज हो जाते हैं, अल्लाह रमजान में उन जायज कामों से भी क्या फरमा देता है? बोलिए, मना फरमा देता है। कभी सोचा है क्यों मना फरमाया है? सिर्फ इस वजह से अल्लाह मना फरमाता है कि जब मेरा बंदा मेरी मोहब्बत में जायज कामों को छोड़ने का आदी बन जाएगा 1 महीना, तो बाकी के 11 महीने नाजायज कामों को तो खुद ब खुद ही छोड़ देगा। लेकिन कैसा बेवकूफ है वो आदमी जो पूरा महीना जायज काम तो छोड़े रखे, लेकिन नाजायज काम करता रहे। खाना छोड़ा हुआ है, मुंह बंद है, लेकिन आंख खोली हुई है, हर चीज देख रहा है। पीना बंद है, मुंह बंद है, लेकिन इसने जबान और कान खोले हुए हैं, सुन भी सब कुछ रहा है, मुंह में जो आता है बक भी सब कुछ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े का मकसद यही बयान फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून, रोज़े दिए इसलिए हैं ताकि तुम क्या बन जाओ भाई? मुत्तकी बन जाओ। और मुत्तकी वो होता है जो नेकी को करने वाला हो, गुनाह को छोड़ने वाला हो। आखिर में इस उम्मत के मुफस्सिर गुजरे हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास। कौन है जी? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु, मुफस्सिर हाज़िहिल उम्मत, इस उम्मत के मुफस्सिर हैं। उन्होंने नेकी के 4 फ़ायदे बयान किए हैं, गुनाह के 4 नुकसान बयान किए हैं। नेकी के 4 फ़ायदे, गुनाह के 4, वो सुन लीजिए ताकि दिल में नेकी करने का शौक पैदा हो और गुनाह करने का खौफ पैदा हो। नेकी के 4 फ़ायदे अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, अन्ना लिल हसनती बयाज़न लिल वजही व नूरन फिल क़ल्बी व सअतन फिर रिज़्क़ व मुहब्बतन फ़ी क़ुलूबिन नास। ये 4 फ़ायदे हैं नेकी के। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
नेक आदमी के जिस्म को ताकतवर बना देता है। नंबर 2, बयाज़न लिल वज्ह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक आदमी के चेहरे को बारौनक कर देता है, पुरनूर कर देता है, बारौनक कर देता है। तीसरा फायदा नेकी करने का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकी करने वाले को साअतन फिर रिज़्क़, अल्लाह उसके रिज़्क़ में वसअत पैदा फरमा देता है। और चौथा फायदा नेकी का, महब्बतन फी कुलूबिन नास, अल्लाह नेकी करने वाले की लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा देता है। गुनाह के 4 नुकसान अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने इसी के साथ बयान फरमाए। गुनाह के 4 नुकसान क्या हैं? अन्ना लिस्सय्यअति सवादन लिल वज्ह, गुनाह का पहला नुकसान यह है कि गुनाह करने वाले के चेहरे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेनूर कर देता है, बेरौनक कर देता है, बदमजा कर देता है, उसको देख के मजा ही नहीं आता। पहला नुकसान गुनाह का। दूसरा, वज़ौफन फिल बदन, गुनाह करने वाले की बदन की ताकत को अल्लाह खत्म फरमा देता है, ये कमजोर हो जाता है, ये बीमारियों का गढ़ बन जाता है। तीसरा नुकसान गुनाह का, ज़य्यकन फिर रिज़्क़, गुनाह करने वाले के रिज़्क़ को अल्लाह ताला तंग फरमा देता है। जितने मर्जी कारखाने लगा ले, रिज़्क़ तंग होगा, जितना कमाएगा उससे ज्यादा लगाएगा। और चौथा नुकसान गुनाह का, बुग़्ज़न फी कुलूबिन नास, गुनाह करने वाला भले तन्हाइयों में गुनाह करता हो, मुंह पे हर एक के हंस से मिलता हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाह की नहूसत से लोगों के दिलों में इसकी नफरत पैदा फरमा देता है। तो भाइयों, गुनाह के 4 नुकसान हैं, नेकी के 4 फायदे हैं। तो क्यों ना हम वही काम करने के आदी बने इस रमज़ान के सदके जो हमें नफ़ा दे, जो हमें फ़ायदा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुनाहों को छोड़ने के 10 वादे बयान फरमाए हैं, क्यों ना हम उन 10 वादों को हासिल करने वाले बन जाएं। रमज़ान का आखिरी जुमा है, 3 दिन बाद ईद उल फित्र आनी है। ईद उल फित्र पे एक बहुत बड़ा अहम मसला है फितराने का। कौन सा मसला है जी? बोलिए। सदक़े फ़ित्र जिसे आप कहते हैं। सदक़े फ़ित्र का मसला मैं पहले भी यहाँ पे बयान कर चुका हूँ, जो पहला जुमा यहाँ पढ़ाया था, या वो रमज़ान से पहले कोई जुमा था जो पिछले महीने वाला, वहाँ सदक़े फ़ित्र का मसला बयान किया था। मुख्तसरन फिर कर देता हूँ कि सदक़े फ़ित्र हर वो बंदा देगा जिसके घर में 52.5 तोला चांदी की कीमत जो बनती है 1,90,000 रुपए के करीब। हर वो बंदा जिसके घर में 1,90,000 की मालियत का ज़रूरत से ज़ायद सामान मौजूद है, उस पे सदक़े फ़ित्र देना वाजिब है। उस पे सदक़े फ़ित्र देना क्या है जी? बोलिए। वाजिब है। और जिसके घर में 1,90,000 जितना भी ज़रूरत से ज़ायद सामान मौजूद नहीं है, कोई खातून है, जॉब करती है, तनख्वाह लेती है, खा जाती है, ज़रूरत से ज़ायद कुछ भी नहीं है, और माली हालात पे भी तंग है, कोई आदमी है, उस पे सदक़े फ़ित्र देना वाजिब नहीं है। ये सदक़े फ़ित्र दे भी नहीं सकता बल्कि ले सकता है, उसको दिया भी जा सकता है। तो सदक़े फ़ित्र देने का एहतमाम करें। कब देना चाहिए? ये वाजिब होता है ईद उल फित्र के दिन तुलूए सुबह सादिक के बाद, और देना होता है ईद नमाज से पहले। तुलूए सुबह सादिक के वक्त वाजिब हुआ, ईद नमाज से पहले क्या करना है? देना है। अब अगर उसी वक्त आप देंगे तो उस वक्त हो सकता है आपको कोई लेने वाला न मिले। ये तो लाहौर है, यहाँ अमीर तो क्या, यहाँ फ़कीर भी 12 बजे जागता है। लाहौर का अमीर तो छोड़े हजरत, यहाँ फ़कीर भी 12 बजे जागता है। सिग्नल आपको खाली मिलते हैं 12 बजे तक। मैं तो घूमता हूँ ना, मुझे पता है। इजाज़त 12 बजे तक सिग्नल पे फ़कीर भी नहीं होता। तो मेरे साथ एक लाहौरी भाई बैठे थे, मैंने कहा यार तुम्हारे लाहौर का क्या ही कमाल है, अमीर छोड़ो, यहाँ भिखारी भी 12 बजे से पहले जागता, उसका ऑफिस टाइम भी कब शुरू होता है? 12 बजे। तो अगर सदक़े फ़ित्र ईद के दिन आप निकालेंगे तो क्या होगा? फ़कीर कोई मिलेगा नहीं, और ईद नमाज के बाद देंगे तो उसका सवाब हासिल आपको नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि सदक़े फ़ित्र आप ईद से 1-2 दिन पहले दे दें। 1-2 दिन पहले दें, बहुत ज़्यादा पहले देने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मसला भी मैं बयान कर चुका हूँ। ये जो जज्बाती तौर पर आप कहते हैं जी बेचारे ईद कर लेंगे, वो जो गुरबा होते हैं उनको ज़कात दी जा सकती है, दीगर मदद की जा सकती है। सदक़े फ़ित्र का मकसद ये है कि गरीब का ईद के दिन का खर्चा चल जाए। गरीब का ईद के दिन का, आप उसको यकम रमज़ान को सदक़े फ़ित्र और फितराना दे दें तो क्या होगा? जब पैसे देंगे उसी दिन क्या हो जाएंगे? उसके ख़त्म हो जाएंगे। ईद तो फिर वही भूखा। तो कोशिश करें ईद के जितना करीब दे सकते हैं मुस्तहिकीन को सदक़े फ़ित्र दें। इस्लाही बयानात, फ़िक़ही मालूमात और मुस्तनद दीनी तालीमात के लिए मौलाना अहमद मदनी अब्बासी चैनल सब्सक्राइब करें।